guys, and welcome to my channel, The First Traders. And good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are in this world. And hopefully, आप लोग सब अच्छा कर रहे हो and earning a lot of money from the markets. And अच्छी health में भी हो, so आप अपनी health का ध्यान ज़रूर रखें. So I'm sure आप सब eagerly wait कर रहे थे इस chapter का, इस episode का, because in this chapter, this is where things are going to get real, right? And earlier lessons were all about supply, demand, and introduction, support and resistance, and SSR, significant support and resistance. Okay, so now how are we going to use it? All right, it was just an introduction, just surface about market structure and trend, uptrend, downtrend, major trend, minor trend. So if you guys have missed on that, please make sure कि आप पीछे जाके वो दो chapters जरूर देख लें. Okay, and it's all about the movement of supply and demand, how I define it and how you are going to define it. From there you will know the first kind of setup, my favorite kind of setup, okay, and which works amazing. It has worked medicinally for me in the past and excellent, really, I tell you, it's really good setup, and I have earned a lot of money from this setup. And there are very far more complex setups as well, and I will be explaining those in later chapters. मैं और भी डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा मोर कॉन्सेप्ट्स को, कॉम्प्लेक्स सेटअप्स को. एंड सो ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड. अगर सप्लाई बड़ी है डिमांड से तो वहाँ पर इम्बैलेंस बनेगा, एंड वाइस वर्सा. इफ डिमांड इज हायर देन द सप्लाई, इट विल ऑलवेज पुश द प्राइस हायर, एंड इफ द सप्लाई इज हायर देन द डिमांड, इट विल पुश द प्राइस लोअर. ओके, एंड देयर आर अदर नेम्स फॉर इट एज वेल, लाइक एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. But it doesn't matter, right? We just have to focus on the simple facts. Alright, so let's move on. So guys, now let's look at the supply and demand movements. It is very simple. So first kind of supply zone, okay, it is rally, base, drop. Okay, so as you can see in the first example, the price is rallying, then it consolidation, it's in the consolidation phase. Okay, that means it's creating a base and then it suddenly drops, so it is called a rally base drop, RBD. Okay, so the second type of supply is drop base drop. Okay, this and this red area, this rectangle will be the supply area. Okay, so at the end the supply is pushing the price downwards. Okay, in the both examples these are the supply zones, and the price is pushing price downwards, नीचे की तरफ push कर रहा है, sell कर रहा है price. Okay, so the third example is the demand zone example. Okay, it is opposite of rally base drop, drop base rally. Okay, the price, as you can see, price नीचे गिर रहा है and it makes a base and then it breaks the top. Okay, so that means drop base rally. Okay, and this is a demand zone. And the fourth example is rally base rally. Okay, first the price is coming up and then it consolidates, makes a base and then rally again. It is also called RBR. All right, and it can be it's very simple on the line charts, but on the candlestick charts आप लोग काफ़ी confuse हो सकते हैं. So I will show you lot of examples. Don't worry about that. And always sell at the supply and buy at the demand. It's your motto. Okay, it's very simple. Always keep in mind that you have to sell at the supply and buy at the demand. Okay, and मैं हमेशा देखता हूँ कि कौन से जब कब प्राइस ने बेस बनाया और अचानक से पुश किया प्राइस को, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ. Okay, then you just have to keep it very simple. And मेरी एंट्रीज काफ़ी रिफाइंड होती है, सो once I spot a supply और डिमांड, हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके और रिफाइन कर सकते हैं उसको, एंड देन मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए प्राइस. ओके, सो these are the four types of supply and demand movements. Okay, let's go ahead. मैं आपको काफ़ी एग्जांपल्स दूंगा. So guys, now look at this, how to mark supply and demand zones, also known as order blocks. So हम ट्रेडिंग दुनिया में सप्लाई एंड डिमांड एरियाज को ऑर्डर ब्लॉक्स के नाम से भी जानते हैं.
एंड बियरिश सिनेरियो में देखिए, अगर आपकी स्क्रीन पे एक आपको एग्जांपल दिख रहा है, सो अगर एक सब्सटेंशियल डाउन मूव आई है, ओके, सो वी टेक द लास्ट बुलिश कैंडल एज आवर सप्लाई, ओके, एंड इन अ बुलिश सिनेरियो अगर एक सब्सटेंशियल मूव आई है अपसाइड, ओके, अगर ऊपर की तरफ मार्केट निकला है अचानक से, देन वी द लास्ट बियरिश कैंडल जो होगी वो हम एज अ डिमांड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, ओके, just like you see in this example. And you can also see here in the next slide that जो जिन ऑर्डर ब्लॉक्स और सप्लाई एंड डिमांड एरियाज के पास में फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस होता है, वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, वैलिड सप्लाई डिमांड एरियाज होते हैं. एंड जिन सप्लाई एंड डिमांड एरियाज के पास देयर इज नो इम्बैलेंस, नो फेयर वैल्यू गैप, लाइक वी लर्नड अर्लियर, राइट, अगर वहाँ पर कोई गैप नहीं है तो वो ऑर्डर ब्लॉक, वो सप्लाई इनवैलिड है. ऑल्सो ये काम कर सकती है बट लेस प्रोबेबिलिटी, ओके. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन योर माइंड, ओके. डू नॉट फॉरगेट दिस, द फेयर वैल्यू गैप, द इम्बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर एक मूव सब्सटेंशियल मूव, बड़ी मूव अपसाइड आई है तो लास्ट बियरिश कैंडल विल बी आवर डिमांड, और अगर सब्सटेंशियल मूव डाउन साइड आई है तो लास्ट बुलिश कैंडल विल बी आवर सप्लाई, ओके. So let's come back to the old slide. Last bullish candle before the down move and the last bearish candle before the up move, okay. So अब मैं charts पे जाऊँगा और आपको काफ़ी examples दूँगा and you will understand. So let's keep going. So let's come on the charts now. अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम supply and demand areas mark करते हैं, okay. So for example जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये low टूटा, ओके, मार्केट ने एक शार्प फॉल दिया नीचे की तरफ, ओके. सो लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द सब्सटेंशियल डाउन मूव, ओके. सो आखिरी बुलिश कैंडल कौन सी है? ये रही आखिरी बुलिश कैंडल जिससे पहले ये नीचे का डाउन मूव आया, ओके. सो दिस विल बी नोन कॉल्ड आवर सप्लाई, ओके. नाउ हियर वी कम, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने ये लो तोड़ा, ओके. सो लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर दिस डाउन मूव केम, कौन सी बुलिश कैंडल आखिरी थी? ये देखो, दिस इज द लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर, दिस इज आवर सप्लाई. सो प्राइस यहाँ पर आया और वापस नीचे गिरा, राइट. एंड अगर इफ यू सी हियर, यहाँ पर प्राइस ने दोबारा नीचे की तरफ स्ट्रक्चर तोड़ा है, ओके. एंड लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर दिस डाउन मूव अगर देखेंगे तो ये रही हमारी आखिरी बुलिश कैंडल, राइट. एंड अगर आपको इसके पास में कोई विक दिखे, कोई शेडो की हाई दिखे, तो आप इस पूरे एरिया को लेंगे, ओके. सो प्राइस ये रही आपकी सप्लाई. सो प्राइस इधर आया, आते ही वापस गिरा, ओके. एंड फिर यहाँ पर एक डाउन मूव आई है, आप देखेंगे. एंड फिर लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, दिस इज आवर सप्लाई. अभी यहाँ पर प्राइस आया नहीं है बट दिस इज़ अ वैलिड सप्लाई, ओके. ऑल्सो दिस इज ऑल्सो सप्लाई बिकॉज यहाँ पर स्ट्रक्चर टूटा है. और ये देखिए लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर दिस डाउन मूव, ये भी एक वैलिड सप्लाई है, ओके. एंड अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये लो टूटा है, ओके. देन लास्ट बुलिश कैंडल जिसने इंड्यूस किया इस मूवमेंट को, ओके. सो दिस इज आवर लास्ट बुलिश कैंडल, दिस इज अ वैलिड सप्लाई. अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको एक दूसरी कैंडल दिख जाएगी जो कि और ज़्यादा लाइन करेगी, देख, ठीक है. जैसे कि हम 4 आवर पे जाते हैं, सॉरी 3 आवर पे, ओके. सो सी लास्ट बुलिश कैंडल जिसने ये एक बड़ा मूव डाउन साइड क्रिएट किया, ये रही हमारी सप्लाई. सो प्राइस इस पर सप्लाई पे आया और फिर डाउन, ओके. सो इट्स वेरी वेरी इजी. एंड जस्ट लाइक सप्लाई, डिमांड मार्क करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है. तो लेट्स फाइंड सम बुलिश पेयर. Okay, so USD CAD is pretty bullish, right? Yes. So देखिए आप, अगर आप तो अब क्या हम डिमांड कैसे मार्क करते हैं, ओके. तो जैसे कि ओके, हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये वाला हाई टूटा है, राइट. दिस हाई इज ब्रोकन. सो लास्ट बियरिश कैंडल बिफोर द अप मूव, ओके. तो आप देखेंगे ये रही आखिरी बियरिश कैंडल, राइट. तो ये हमारी डिमांड हमने मार्क कर दी, ओके. एंड बिफोर, इफ यू गो बिफोर दैट एनीवेयर, लाइक यू सी हियर, जैसे ये बहुत बड़ी देखिए अप मूव आई है, राइट. सो लास्ट कैंडल बियरिश कैंडल जिसने ये अप मूव क्रिएट करी, ये देखिए, दिस इज द लास्ट कैंडल,
दैट क्रिएटेड दिस मूव. दिस इज़ आवर डिमांड. सो देखिए प्राइस यहाँ पर आया और आते ही डिमांड बढ़ी और ऊपर. ओके, एंड जस्ट लाइक दिस अगर आप यहाँ देखो एक बार फिर से ये स्ट्रक्चर तोड़ा, ये वाला हाई तोड़ा है प्राइस ने, दिस हाई, नया हाई बनाया. ठीक है, तो इस मूव से पहले लास्ट बियरिश कैंडल कौन सी है? दिस इज द लास्ट बियरिश कैंडल बिफोर दिस मूव. तो देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस वापस नीचे आया एंड देन मूव. ओके, एंड दिस इज हाउ वी मार्क आवर सप्लाई एंड डिमांड एरियाज. एंड इफ़ यू नीड मोर एग्जांपल्स देन आई विल शो यू. अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मूव आया था, ये हाई टूटा था, तो लास्ट कैंडल, लास्ट बियरिश कैंडल बिफोर दिस मूव. ओके, बिकॉज वी आर फाइंडिंग डिमांड, ऊपर गया ना ये प्राइस, तो हम डिमांड ढूंढ रहे हैं. तो यू कैन सी हियर लास्ट बियरिश कैंडल, राइट, दिस इज द वैलिड डिमांड. सो प्राइस केम हियर एंड देन ऊपर गया, देखो, राइट. एंड देन हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने फिर नीचे की तरफ इसे तोड़ा. ओके, सो द लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द डाउन मूव, ये देखिए लास्ट बुलिश कैंडल, राइट, ये हमारी सप्लाई. देखिए प्राइस वापस से सप्लाई पे आया, आते ही मिटिगेट करके दोबारा नीचे गया. ओके, सो दिस इज हाउ वी मार्क सप्लाई एंड डिमांड एरियाज. जस्ट लाइक हियर, दिस इज अ वेरी गुड सप्लाई, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द डाउन मूव, राइट, एंड लास्ट बुलिश bearish कैंडल बिफोर द अप मूव. दिस इज नाइस डिमांड, राइट. बिकॉज इफ यू, अगर हम 2 घंटे में जाएंगे तो हमको पूरी कैंडल दिख जाएगी. देखिए लास्ट bearish कैंडल जिसने ये वाला हाई तोड़ा था, ये वाला अप मूव दिया था, ये हो गई डिमांड. सो ऑलवेज लुक फॉर, अगर आप डिमांड ढूंढ रहे हैं, ओके, मतलब कि ऊपर की साइड स्ट्रक्चर टूटा है, हम वी आर देन मतलब कि हम डिमांड देख रहे हैं बाय करने के लिए, राइट. तो लास्ट बियरिश कैंडल जब हाई टूटा उससे पहले की लास्ट बियरिश कैंडल, और अगर हम सप्लाई देख रहे हैं तो लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द डाउन मूव. ओके, दिस इज आवर बेसिक रूल फॉर सप्लाई एंड डिमांड. ओके, and like you see here, this is a setup, and what I've been looking here is the last bearish candle before the up move. देखिए यहाँ पर एक अप मूव आई है बहुत बड़ी, तो यहाँ पर डार्क लास्ट bearish candle कौन सी है? So this is the last bearish candle. So I'm waiting कि यहाँ पर प्राइस आएगा and then I will buy from here. Okay, price can either come here and go up, और प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस यहाँ से आ सकता है और इस वाली बियरिश कैंडल से ऊपर जा सकता है. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बियरिश कैंडल है. 1 सेकेंड, देखिए लास्ट बियरिश कैंडल बिफोर द अप मूव. सो प्राइस इस कैंडल तक भी आ सकता है. तो दीज आर द पोजिशंस वेयर आई विल बी लुकिंग फॉर बाइज. ओके, सो आई होप आप लोग अब समझ चुके हैं कि किस तरह हम सप्लाई डिमांड मार्क करते हैं. सो वी कैन मूव ऑन, लेट्स गो अहेड. सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारा फेयर वैल्यू गैप भी है. प्राइस ने बहुत सडनली मूव किया था और उसने काफ़ी सारा इम्बैलेंस भी बनाया है. ओके, दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी वेरी वैलिड डिमांड. ओके, अगर यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, ये इम्बैलेंस, तो ये डिमांड वैलिड नहीं होती. ओके, एंड जस्ट लाइक हियर बिफोर यू सी, यहाँ पर भी प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था, देखिए इम्बैलेंस बनाया था, राइट. सो डैट मीन्स इट इज़ अ वेरी वैलिड डिमांड. तो प्राइस यहाँ पर आया और देन शूट अप, राइट. एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो इस डिमांड के पास भी प्राइस ने बहुत सारा इम्बैलेंस बनाया था. दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी वैलिड डिमांड. सो प्राइस यहाँ पर आया, इस डिमांड पे आते ही देन इट शूट अप, राइट. सो दैट्स हाउ यू अलाइन, match up the fair value gap, the imbalance with supply and demand areas to find the more valid and more powerful supply and demand areas. Okay, so now we move on to the next. So if you look now at the charts, I show you what are support and resistance. Okay, so अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है and नीचे आता है, okay, so this is called resistance, right. हमने पहले पढ़ा था. एंड अगर प्राइस नीचे आता है एंड वहाँ से ऊपर जाता है तो इट इज़ कॉल्ड सपोर्ट. ओके, इट इज़ सिंपल एंड आप लोगों के लिए क्लियर है ये चीज़. एंड नाउ व्हाट हैपन्स. ओके, अब देखिए जैसे मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है. ओके, सही है, प्राइस ऐसे ऊपर जाता है. तो देखिए यहाँ पर ये पहली रेजिस्टेंस बनाई प्राइस ने, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस टूटी
तब ये बन गई सपोर्ट। एंड व्हाट इट हम ये क्या कहलाता है, RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके, आप देखेंगे यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, जब ये रेजिस्टेंस टूटी तब ये एक सपोर्ट बन गया, प्राइस यहाँ पर आया और वापस बाय। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके, एंड सेम अगर प्राइस नीचे आ रहा है, ओके, तो यहाँ से सपोर्ट उठाया, फिर लो, फिर सपोर्ट तोड़ा, रेजिस्टेंस उठाई, एंड सपोर्ट तोड़ा, रेजिस्टेंस उठाई। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस ने एक सपोर्ट उठाया था, राइट, एंड जब सपोर्ट को तोड़ा तब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। तो SBR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। एंड सेम थिंग हैपेंड हियर, रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट, जब ये सपोर्ट टूटा तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो प्राइस दोबारा इधर आया एंड देन वापस फॉल किया। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, आवर फर्स्ट सेटअप विल बी कंबाइनिंग सप्लाई एंड डिमांड एरियाज विद RBS एंड SBR। ओके, हम SBR और RBS को कंबाइन करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अपना पहला सेटअप निकालेंगे। ओके, हाउ टू ट्रेड, हाउ टू टेक एन एंट्री, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस SSR है, इफ द सपोर्ट और रेजिस्टेंस that we are looking for is a significant ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ओके, अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट अगर सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं तो हमारे सेटअप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ओके, नाउ लेट मी शो यू ऑन चार्ट्स एंड गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेटअप। सो लेट मी शो यू नाउ, आप एक सिंगल सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ के कितने सेटअप्स निकाल सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि ये एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है, राइट, बिकॉज देयर आर मल्टीपल टचेस, 1 2 3 4। ओके, दैट मीन्स ये एक सपोर्ट है। देन व्हाट द प्राइस डिड, प्राइस ने सपोर्ट को तोड़ा, राइट, दैट मीन्स आवर सेटअप इज रेडी। ओके, सो सी हियर, प्राइस ने इस लो को तोड़ा। सो अब हमें क्या देखना है, इस जब ये लो टूटा है तब उससे पहले, ओके, प्राइस ने कब बेस बनाया। ओके, दैट मीन्स प्राइस ने कब बेस एरिया बनाया। सो आप देखेंगे ये वाला पूरा एरिया बेस एरिया है। ओके, सो व्हाट द प्राइस डिड, हमने ये पूरा एरिया मार्क करा, हम यहाँ पर अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। ओके, एंड प्राइस वापस घूमता हुआ तो आएगा और देखिए इस सप्लाई को मिटिगेट किया एंड देन बूम। Okay, so that's how we combine supply and demand areas with significant support and resistance. Okay, so देखिए ये सेम रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर देखिए, अगर पहले ये एक रेजिस्टेंस थी, मल्टीपल टचेस 1 2 3। ओके, जब प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा इस जगह पे, ओके, तो देखिए प्राइस ने एक बेस बनाया, राइट, लास्ट बियरिश कैंडल बिफोर द अप मूव, ये देखिए, राइट, दिस इज आवर डिमांड। ओके, सो देखिए क्या होगा, क्या किया प्राइस ने, प्राइस यहाँ पर आया इस डिमांड में एंड देन वेंट अप अगेन। ओके, एंड इफ यू सी हियर अगेन, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट, राइट, दिस इज अ नाइस सपोर्ट, दिस लेवल, एंड प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा, इस सपोर्ट को तोड़ा। अगर आप देखेंगे पीछे तो पीछे भी एक अच्छी सपोर्ट लेवल थी, राइट, देखिए इधर, तो प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा एंड इस लेवल को तोड़ते वक्त प्राइस ने एक बेस बनाया। ओके, वी हैव स्टडीड अबाउट बेस इन द प्रीवियस चैप्टर्स। ये देखिए लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द अप मूव। ओके, तो या तो आप पूरी कैंडल को ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ, देखिए मैं प्रेफर करता हूँ बॉडी टू विक। ओके, ये देखो कैंडल की ओपनिंग एंड ये है कैंडल का हाई। आप चाहें तो पूरी कैंडल भी ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ बॉडी टू विक। ओके, सो ये हमारी सप्लाई हुई क्योंकि इस सप्लाई ने एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट को तोड़ा। ओके, सो देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस घूमता हुआ वापस आया इसी सप्लाई पे आके मिटिगेट करके नीचे। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ सेटअप। सो ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल बी लुकिंग फॉर इज अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ओके, एंड उसके बाद वो सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल टूटती कब है। ओके, एंड जब वो टूटेगी तो उसके पास सप्लाई एंड डिमांड एरियाज बनेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑन यूरो USD। सो इफ़ यू सी हियर, दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल, राइट। अगर आप देखेंगे मल्टीपल टचेज है, यहाँ पर फर्स्ट टच
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, राइट, अ लॉट ऑफ सपोर्ट, कई बार प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट उठाया, देन व्हाट हैपेंड, प्राइस ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया, देखिए, राइट। सो दैट्स वेयर आवर सेटअप इज़ रेडी। नाउ हम क्या देखेंगे, जब ये डाउन मूव आया, ओके, जब मार्केट ने स्ट्रक्चर को, सपोर्ट को तोड़ा, तो आखिरी बुलिश कैंडल कौन सी थी, तो ये देखिए, दिस इज द बुलिश कैंडल बिफोर द डाउन मूव। सो ये हमारी सप्लाई होगी, एंड देखिए यहाँ पर हम पेंडिंग ऑर्डर लगाओ या फिर आप एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, एंड दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस, एंड दिस विल बी आवर टीपी, कैन बी वॉट एवर यू, राइट, हम पीछे देख के टीपी तो कुछ भी रख सकते हैं। सो दिस इज आवर सेटअप, हाउ वी कंबाइन सप्लाई एंड डिमांड विद सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, and there can be more examples, like if you see here, this was a very strong support, right, it's बहुत obvious है यहाँ पर, देखिए कि कितना अच्छा सपोर्ट है ये, फिर क्या किया, प्राइस ने सपोर्ट को तोड़ा, राइट, नीचे की तरफ, ओके, फिर वी सॉ अ नाइस डाउन मूव। अब हमारा क्या काम है, आखिरी बुलिश कैंडल बिफोर द डाउन मूव हम मार्क करेंगे एज अ सप्लाई, एंड वहाँ से करेंगे सेल, ये देखिए, आखिरी बुलिश कैंडल विद द हाई, जो विक होती है वो भी लेते हैं हम, ऊपर वाली, आखिरी बुलिश कैंडल बिफोर द डाउन मूव, ये देखिए, प्राइस यहाँ पर आया, एंड वी गॉट अ नाइस ट्रेड। यूजुअली हम 1-3 RR की ट्रेड लेते हैं, एंड एज यू कैन सी हियर 1-3 RR, ऑलमोस्ट 5 ऑफ रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड वी हैव गॉट, राइट, बट हम 3 पे ही लें तो इट्स वेरी मोर एक्यूरेट, मोर probability if the risk reward is lower, like 3 or 4, right? So this is, I hope आप समझ चुके हैं ये कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट टूटने के बाद वहाँ पर सप्लाई और डिमांड एरियाज बनते हैं, एंड देन वहाँ से हम बाय सेल लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन RBS एंड SBR। सो हियर ये क्या चीज़ है यहाँ पर, ये है SBR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ओके, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा, प्राइस ने एक सप्लाई बनाई, एंड ये सपोर्ट बन चुका है रेजिस्टेंस, प्राइस दोबारा आया सप्लाई को मिटिगेट करके नीचे, ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ सेटअप, RBS और SBR प्लस सप्लाई एंड डिमांड। लेट्स लुक एट सम रूल्स फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेटअप दैट वी हैव लर्नड, एंड पहला रूल ये है कि इट हैज़ टू बी अ क्लीन ब्रेक, दैट मीन्स अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है जो कि सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, मीन्स उसके पास मल्टीपल टचेस हैं एंड मल्टीपल रिजेक्शंस हैं, राइट, अगर वो टूटती है तो उसका ब्रेक एकदम क्लीन होना चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट रूल, ओके। सेकंड रूल इज़ दैट जब भी एक क्लीन ब्रेक होता है तो वो जो जिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से हो रहा है, दैट मस्ट बी ए सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, मीनिंग मल्टीपल टचेस, ओके। अगर किसी सपोर्ट लेवल से प्राइस ने मोर देन 2 टाइम्स, मोर देन 1 टाइम, either 2 times, 3 times or 4 times or multiple times सपोर्ट उठाया या रेजिस्टेंस उठाई है, okay, that means it is a significant support and resistance level. And third rule, the most important rule is that at the break point, जिस पॉइंट पे वो SSR टूटी है, okay, at that point there must be a supply or demand area, a supply and demand zone, okay. These are the 3 rules for this particular type of setup, and it is very profitable setup, so please keep these rules in mind. अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं, अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आई थिंक आई शुड स्टॉप द वीडियो हियर, बहुत लंबा हो चुका है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट सेकंड टाइप ऑफ सेटअप, एंड इट विल बी मोर पावरफुल ऑब्वियसली, लेकिन आपके लिए ये अकेला सेटअप ही काफ़ी है, but I know you want to learn as much as you can, so see you, take care now, bye bye then.